الله الرحمن الرحيم والنوع الثالث الموقت بوقت مستقل توسعه وهو وهو الحج صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر خیر نو ثالث وہ چار قسمیں ہیں معمور موقت کی چار وقت ظرف تے وقت معیار اب تیسری صورت تیسری نو کہ موقت ہے ایسے وقت کے ساتھ کہ مشکل ہے اس وقت کا توسع اے جڑا مشکل توسع ہے نا اینوں تھلے چھک چھک کے لبنا ہے میں دا مطلب کی ہے جی اور وہ حج ہے جی کیا کہ جی معمور بے مقید بالوقت کی تیسری قسم ہے کہ معمور بے موقت ایسے وقت کے ساتھ کہ مشکل ہے اور وہ کون ہے اور وہ معمور بے کون ہے اور ایک باری پھر تیسری نوع ہے معمور بے جو موقت ہے ایسے وقت کے ساتھ کہ مشکل ہے اس کا توسع اور وہ معمور بے حج ہے ایک کری مولوی نے طرفوں آخر تیسری قسم وہ معمور ہے کہ جو موقت ہے ایسے وقت کے ساتھ کہ مشکل ہے اس کا توسع اور وہ حج ہے فَإِنَّهُ فرض العمری بس کیونکہ حج پوری عمر کا ایک فرض ہے ہاں جی کیونکہ حج پوری عمر کا ایک فرض ہے ایک باری پھر کیونکہ حج پوری عمر کا ایک فرض ہے اگے وَوَقْتُهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ حج کا وقت جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں کیا کہ جی اور حج کا وقت حج کے مہینے ہیں پھر ایک باری اور حج کا وقت حج کے مہینے ہیں اگے وَحَيَاتُهُ مُدَّةً يَفْضُلُ بَعْدُهَا لِحَجَّةٍ أُخْرَى مُشْكَلٌ اور مکلف کی ساری زندگی یہ مدت ہے کس کی حج کی مکلف کی ساری زندگی یہ مدت ہے حج کی بچ جاتا ہے بعض وقت دوسرے حج کے لیے یہ بات بھی مشکل ہے اینو بے کھولنا ہے کیا کیا جی اور مکلف کی ساری زندگی یہ مدت ہے حج کی بچ جاتی ہے بعض مدت دوسرے حج کے لیے یہ بات مشکل ہے یہ بات بھی مشکل ہے پھر ایک بار حج کی مدت ساری زندگی حیاتہ مکلف کی حیاتی یہ مدت ہے بچ جاتا ہے بعض اس کا دوسرے حج کے لیے مشکل اینوں نے کری پڑھیے تو پھر بابیاں دوواں دی گل سنیے جی اے مشکل کوئی نہیں ہے گا اونج مشکل ہے نو ثالث کون موقت سے وہ کون ہے وہ موقت ہے ایسے وقت کے ساتھ کہ مشکل ہے اور وہ لو جی ہر گل شروع پس حج جو ہے نا یہ موقت ہے خاص وقت وچ ہوندا ہے نال ہی کتاب بھی باب چلدا پیا ہے ہن سنیا جی اے واقعہ ہو گیا اشکال اور اشتباہ کی واقع ہو گیا اشکال اور اشتباہ کیڑی شے وچ حج کے وقت میں اس حیثیت سے کہ حج کا وقت مشابہ ہے معیار کے من وجہ مشابہ ہے ظرف کے اے اشکال بے حج دا وقت حج واسطے نو ظرف آکھنا ہے یا اینو اینی گل نہیں میرے یارا یہ کون یہ دو وجہ سے ہے ایک موشی آپ دسن لگے نہیں دوسرا جڑا بابے نے دسے فینا ہو کولوں
ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ का वक़्त हज के लिए मेयार है या ज़रफ़ है? ज़रफ़ होवे तो वक़्त बचना चाहिए, मेयार होवे तो बचना। लो जी ध्यान, अव्वल ये दो तरह साबित करना। अव्वल ये है कि नहीं अदा किया जाता हज मगर जुल हज्जा के फ़ी बाज़ अशरा, जुल हज्जा के 10 दिनों के बाज़ में। ओए 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 13ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ 10 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਜੀ। बाकी तो कंकरियाँ ने बाद तवाफ़ सदर है जी। तो ये अदा होता है किस में? ज़ुल हज्जा के 10 दिनों के बाद में, ना कि पूरे 10 दिनों में। और हाल ये है कि हज का वक़्त जो है वो 2 महीने 10 दिन है, शवाल ज़ुल्क़ादा और 10 दिन। लिहाजा वक़्त हज के अफ़ाल से बच गया, हो गया वक़्त फाजिल कि कोई नहीं फाजिल होया। पूरे वक़्त विचों बाज़ वक़्त विच हज, तो बस इस वजह से हो गया हज का वक़्त ज़र्फ़ किंदे वास्ते? हज वास्ते। जैसा कि नमाज का वक़्त, अब इस एतबार से ये क्या बन गया? क्योंकि पूरे वक़्त विच इस्तियाब कोई नहीं, बाज़ विच जिवें नमाज बाज़ विच। और इस हैसियत से कि नहीं अदा हो सकता इस वक़्त में मगर एक ही हज, 2 नहीं हो सकते, सिर्फ एक या दिया जो। अब इस एतबार से हो गया हज का वक़्त क्या? जैसे कि रोज़े के वक़्त में हर रोज़ एक ही रोज़ा हो सकता, दूजा नहीं हो सकता। नमाज के वक़्त में तो नफल ते कज़ावां भी हो सकदियां ने। इहदे विच इश्काल ही एक वजह कि भी इनू मेयार आखना है कि या इनू ज़रफ़ आखना है। ये पहली वजह जिहड़ी मोशी बयान की थी। सानी वो है कि बयान किया उसको मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने अपने इस कौल के साथ, हुण सुनी ध्यान करी, कि बेशक वो कौन हज फ़र्ज़ुल उम्र है, यानी नहीं फ़र्ज़ किया गया हज पूरी उम्र में, मगर एक गल ये हो गई, ये पूरी उम्र दा एक फ़र्ज़ है। और वक़्त उस हज का कौन है? ला कुल्लु शहर, ना कि पूरा महीना। कुल्लु शहर दा मतलब 12 महीने दा वक़्त नहीं, ये मराज कुल्लु शहर दा भी सारे महीने दा वक़्त नहीं, बल्कि किहड़े ने? वो ख़ास ने। तो बस मुशाबे हो गया किसके? इस जिहत से कि नई गुंजाइश इस वक़्त में मगर किसकी? जिनसे वाहिद से। जिनसे वाहिद का मतलब है भावें नफली करे तो भावें एक ही कर सकता है, 2 नहीं समझा। तो लिहाजा इस एतबार से क्या बन गया वक़्त? फिर हुण दूजी गल समझी। और हयात और मोशी दलील दी है, वजह बयान की तो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह है। और हयाती उसकी मुद्दत है, बच जाता है बाज़ उसका दूसरे हज के लिए। क्या मतलब? यानी अगर बाकी रहे मुकल्लफ ज़िंदा अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, बाद कौन ही फ़र्ज़न अलैहि, हज के उस पर फ़र्ज़ होने के बाद अगला साल, उदों अगला साल ज़िंदा रहे और अदा करे हज को किस में? अगले साल में या उससे? तो अलबत्ता जायज़ है कि कोई नहीं जायज़। और होगा वो हज अदा ना के, तो बस हो गई मुकल्लफ की हयाती वक़्त किसके लिए? और ये जो उसकी हयाती वाला वक़्त है ये ऐसी ज़रफ़ है कि गुंजाइश है इस पूरी हयाती में हज उखरा की भी, कि कोई नहीं वो एक बारी फ़र्ज़ करे बाकी साला में जो नफल कर लवे, तो बस मुशाबे हो गया किसके? ये पूरी ज़िंदगी नू
ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਹਜ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਔਲ हज्जतन उखरा मुश्किल, ये मुश्किल है किस वजह से, वजहैन एक वजह मुशी जिक्र की थी, एक इन्हें जिक्र की थी। बे इनू की आखना है, ਜ਼ਰਫ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਫ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਏ, ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਮੁਕੱਲਫ ਵੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਫਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰਫ ਬਣ ਗਿਆ। सुने जी ऐ शाबाश। और चूँकि हज के दिनों में सिर्फ एक ही हज हो सकता है, दो नहीं हो सकता, इस एतबार से मेयार बन गया जी। ऐस के अंदर क्या है इश्काल है जी। चलो मन करिए। और 9 सालस किस से, वो मुवक्कत है ना वो मामूर बे है जो मुवक्कत है ऐसे वक़्त के साथ कि मुश्किल है तवस्सो उसकी। वो वजात कीती ने भी ओनू ज़रफ़ आखना है या ओनू ए गल। और वो हज है हुण जेड़े शरा भी से दूजी वजह से ए दूजी बयान की क्योंकि फ़इन्नहु क्योंकि हज उम्र का फ़र्ज़ है, यानी पूरी उम्र च एक बारी। और वक़्त हज का अशुर हज है और हयाती मुकल्लफ की ऐसी मुद्दत है कि ज़ायद है बाद उस मुद्दत का हज उखरा के लिए मुश्किल है। कि मतलब है कि फिर इसमें 2 सूरतें हैं जी। और 9 सालिस मुवक्कत से वो मामूर बे है जो मुवक्कत है ऐसे वक़्त के साथ कि मुश्किल है उसकी तवस्सो, और वो हज है क्योंकि हज ये उम्र का फ़र्ज है और हज का वक़्त अशहुर हज है। और हयाती मुकल्लफ की ये ऐसी मुद्दत के बच जाता है उसका बाद दूसरे हज के लिए ये मुश्किल है। और 9 सालिस मुवक्कत से वो मामूर बे है कि मुवक्कत है ऐसे वक़्त के साथ कि मुश्किल है उसकी तवस्सो, और वो हज है क्योंकि हज उम्र का फ़र्ज है और हज का वक़्त अशहुरुल हज है। और मुकल्लफ की हयाती मुद्दत है ऐसी मुद्दत है कि बच जाता है बाज़ उस मुद्दत का दूसरे हज के लिए, क्योंकि पूरी उम्र का फ़र्ज है तो लिहाजा इनदे विच फिर दूसरा भी हो सकता है जी। इहदे विच इश्काल है लिल मुश्किल लिल वजहैन लिल मज़कूर है ना बे इनू ज़रफ़ आखना है या इसनू ए मतलब जो समझे ही। हुण वो थोड़ा वेखना शरा फिर अगे वापस आने। लेकिन इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने इतबार किया है किसका, वुसत का। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने इतबार किया जानब जैसा कि अनकरीब आ रहा है। और जब के इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल राजे है किन के नज़दीक, तो ज़िक्र किया है फ़कत तवस्सो, ज़िक्र किया है ए बस अगली गल छड़ दी थी। हुण फिर पढ़ो अगली गल। ए रबत आ गया इंदा बमिन बस इस मुवक्कत का यानी हज का इस मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये कि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक इजाज़त है मुकल्लफ को ताख़ीर की जी। और मामूर बे इस मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक इजाज़त है मुकल्लफ को ताख़ीर की। फिर एक बारी इस मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये बात कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह इजाज़त है मुकल्लफ को ताख़ीर की। ऐ शाबाश लेना लाकिन बिशर्त अल्लाह यफूतहु फी उम्रिही,
लेकिन इस शर्त के साथ कि पूरी उम्र में फौत ही ना हो जाए। लेकिन इस शर्त के साथ कि पूरी उम्र में फौत ना हो जाए। तो फिर ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। क्या कहे जी? लेकिन इस शर्त के साथ कि उसकी पूरी उम्र में फौत ना हो जाए। कौन? हज। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖੀ। ਬਾਮਿਨ ਹੁਕਮ ਹੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਕਿਨ ਵਾਲੀ। इस मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये कि इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह गुंजाइश है मुकल्लफ़ को ताख़ीर की, इजाज़त है मुकल्लफ़ को ताख़ीर की, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना फौत हो जाए हज मुकल्लफ़ की पूरी उम्र में। यानी इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह हज का वजूब बेतरीके तदय्युक नहीं, हत्ता के नई मुतअय्यन अशहुरुल आमिल अव्वल लिल अदाए, ऐसे साल दा शवाल जुलकादा ते जुलहज्जा ते 10 ऐसे साल दे अदायगी वास्ते मुतय्यन, बल्कि रुखसत है नदीम के लिए ये कि अदा करे हु हज को 2025 2026 ਤੇ 2075 ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। बड़ी नहीं अगर जाना है हला, लेकिन बेशर्त इस शर्त के साथ कि हज उससे फौत ना हो। ऐशा बस जी एक किन्ना दिन जी के अगो पढ़ो वाइंदा भी यूसुफ और फिर तर्जमा कर दिया ना। भी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला यदअय्यनु अलैहिल अदाउ फी अशहुरिल हज्ज मिनल आमिल अव्वल इहतियातन इहतिराजन अनिल फवात। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक मुतय्यन है मौलवी अब्दुल्ला पर अदायगी अशहुर हज में पहले साल। वो पहला केड़ा जदों उन्द ते इस्तिताअत हुई, मन इस्तिता लै सबीला जदों होया है ना, ये सही आ जड़ा साल अगों हज आ रहा है, इसे साल मुतय्यन है कि अब्दुल्ला की करे, अदायगी करे, एहतियातन वास्ते बचने के फवात से। ए किन्ना फरमाया है ए वे तदय्युक जी, ऐसे साल आज करे मौलवी आमिर जी। और इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह मुतय्यन है मुकल्लफ पर अदायगी अशहुर हज में पहले साल से एहतियातन वास्ते और पहले साल से नहीं हो यार, पहले साल उर्दू च से माना करो होर माने बनते ने। पहले साल का मतलब जदों ते इसे साल ही की करे, क्यों? एहतियातन वास्ते बचने के फवात से। एहतियातन हज कर लवे, क्योंकि इंज ना हो भी अगले साल फौत ही हो जाए तो हज ही फौत हो जाए। उधरों वेख। और इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह मुतय्यन है मौलवी आमिर पर अदायगी अशहुर हज में पहले साल से एहतियातन, पहले साल जदों हज का पढ़ियो वास्ते बचने के किस से? फवात से। ओ देख यानी ओ बाबा, यानी इंदा भी यूसुफ ज़रूरी है मौलवी मुदस्सिर के लिए ये कि अदा कर ले हज को पहले साल में, उस अपने वक़्त में जेड़ा हुण आना है साल, इसे साल जदों इनू आज़ाद रहला मिल गया एहतियातन वास्ते बचने के, क्योंकि हयाती 2025 तक 2023 तक अमर महूम में वो असी ध्यान झट का पता नहीं, ये तो पूरे 12 महीने गुजरने ने जी। इस वास्ते की कर लवे, कर लवे जी। चलो जी। और मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक
गुंजाइश है मुकल्लफ को ताख़ीर की, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना फौत हो जाए हज मुकल्लफ की पूरी उम्र में। और इंदा भी यूसुफ राहिमहुल्लाह मुतय्यन है मुकल्लफ पर अदायगी। चलो जी, अशोर हज में पहले साल से एहतियातन वास्ते बचने के फवात से जी और मामूर बे मुबक्कर के हुक्म से है इस बात के इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह रुसत है मुकल्लफ को ताख़ीर की, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना फौत हो जाए हज उससे उसकी उम्र में जी। और इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह मुतय्यन है उस पर मुकल्लफ पर अदायगी अशहुर हज में पिछले साल से एहतियातन वास्ते बचने के फवात से। और मामूर बे मुवक्कत के हुक्म से है ये बात कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक गुंजाइश है मुकल्लफ को ताख़ीर की, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना फौत हो हज उसकी पूरी उम्र में। और इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह मुतय्यन है मुकल्लफ पर अदायगी अशहुर हज में पहले साल से एहतियातन वास्ते बचने के फवात से जी। ज़ाहरा ज़ालिका फ़ी हक़्क़िल मासमी ला गैरु हत्ता यबका नफ़्लु मशरूअन। बस। अच्छा जी, इस इख्तलाफ का कट्टी कट्टा क्या निकलेगा? बस जाहिर होगा ये गुनाहगारी के हक में सिर्फ, ना किसी और हक में। क्या क्या जी? बस ज़ाहिर होगा ये सिर्फ गुनाहगारी के हक में ना कि किसी और हक में। फिर एक बार ये बस ज़ाहिर होगा ये गुनाहगारी के हक में ना कि किसी और हक में। हत्ता के बाकी रहेगा नफल मशरू, हत्ता के ताकि बाकी रहेगा नफल मशरू। इन्हें हज फर्ज कोई नहीं अजे कीता, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਫਲੀ ਹਜ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। क्या क्या हत्ता के ताकि बाकी रहेगा नफल मशरू की रहेगा नफल। हुण को शरा ध्यान करो। बस जाहिर होगा ये मअसम के हक में ना के, यानी जाहिर होगा सर खिलाफ मज़कूर का गुनाहगारी के हक में ना के। हुन तफरी हत्ता के जब बना अदा किया मौली इब्राहिम ने पहले साल में तेजाद रहला मौजूद सी सफ़र, सारियां शर्तां पूरियां सन यार, ता शर्त जी तो हो जाएगा मुकल्लफ फासिक मरदूद शहादत। क्या हो जाएगा? इनकी गवाही कबूल नहीं। इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह फिर जब अदा करेगा उसको 2025-26 में उठ जाएगा उससे ये गुनाह, उठ जाएगा। इसी तरह हाल है हर साल में, जे 2026 नहीं किया फिर भी गुनाहगारी नवीं ते मरदूद शहादत 2027 कर लिया तो ठीक है, जे नहीं किया तो फिर 28 जे नहीं किया तो फिर 29 इवें काम अगर टुरदा जाएगा। ये किन्ना दे नज़दीक है। और इंदा मुहम्मद रहमहुल्लाह नहीं गुनाहगार होगा तो ना ही फासिक होगा तो ना ही, मगर मौत के वक़्त या मौत की जब के ना अदा किया उसने हज, लाकिन कट्ठा जे लेकिन जब भी अदा करेगा होगा अदा इंदल फरीकैन। ये गायत है ले कौल ही की ला गैरो, बस सिर्फ गुनाहगारी के हक में ये ज़ाहिर होगा, किसी और के हक में ज़ाहिर की मतलब, यानी जब के नहीं होगा समरा खिलाफ गुनाह के अलावा, ते लिहाजा अगर नीयत की मौलवी अब्दुल जलील ने नफली हज की, हालांकि अब्दुल जलील पर हज्जातुल इस्लाम बाकी है, बेजे फ़र्ज़ कीता कोई नहीं तो केड़ी नीयत कर ली इन्हें, तो अलबत्ता वाक़या होगा हज इसका नफल
ਬੇਇਤਫਾਕ ਅਲ-ਫਰੀਕੈਨ ਦੋਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਫਲੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ वजह की नफली क्यों होया? इसलिए कि वक़्त जैसा कि वो हज का वक़्त काबिल है किसके लिए? काबिल है भी, और क्योंकि हज नफली भी तो जायज़ है ना। सुने जे गल। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह माज हुक्म करते हैं फ़र्ज़ के तयन के साथ किस तरह बचने के लिए। बस ये जो आपका हुक्म है नहीं असर करेगा, बस नहीं असर करेगी ये तयन किस में? नफल की सेहत में। मिसाल देंदे जे मकीस लै, जैसा कि नमाज के वक़्त का जो आखिरी वक़्त है और ज़ोर दे 5 मिनट रह गए 2 मिसल होने च, जब के मुतय्यन है ये वक़्त किसके लिए? तो हुण वो फ़र्ज नहीं पढ़ता, ज़ोर दियाँ 4 सुनता पढ़ देंदा है, तो ज़ाहिर होगा ये ताख़ीर की हुर्मत में, ना कि मना में सलात उखरा की सेहत से। इन्हां 5 मिनटां विच ज़ोर दे फ़र्ज नहीं हो पढ़दा ते नमाज जान के कज़ा करना हराम वाला गुनाह तो होवेगा, लेकिन जिहड़ियां ने 4 सुनता या 4 होर नफल पढ़ दिते ने ये हो जाणगे है वो मकीस लै पेश किया ने भला थी वे। और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने लगव जाएगी नफल की नीयत और वाक़या होगा ये फ़र्ज़। उन्हें आख्या नफल की नीयत करेगा सिर ते फ़र्ज़ खलोता है तो नफलों का ये नहीं होना बल्कि फ़र्ज़ ही होना है। और जिवें रमज़ान में कोई नफल की नीयत करे तो कि नफल हुंदा है, फ़र्ज़ हुंदा है, ये भी फ़र्ज़ ही हो। किन्ना फरमाया? ऐशा बस पास ज़ाहिर होगा ये गुनाहगारी के हक़ में, ना कि गैर, हत्ता के बाकी रहेगा नफल मशरू। जी ज़ाहिर होगा ये गुनाहगारी के हक़ में, ना कि गैर, हत्ता के बाकी रहेगा नफल मशरू। बस ज़ाहिर होगा ये गुनाहगारी के हक़ में, ना कि गैर, हत्ता के बाकी रहेगा नफल मशरू। जी वजवाज़ुहु इंदल इज़लाक़ी बिदलालति तअय्युन मिनल मुअद्दी इज़ ज़ाहिर। ला यक़सिदु नफ़ला अलैहि हज्जतुल इस्लाम। चलो जी, सवाल है उसका जवाब है, वो थले फिर तफसील आ रही है कि अगर किसी बंदे ने नवैतुल हज्जा, ना फ़र्ज़ ते ना नफल कोई नाल कैद नहीं लाई, क्या क्या नवैतुल हज्जा ये इंदा फ़र्ज़ हो जाएगा। ये इंदा सवाल यह है कि किमें फ़र्ज़ हो गया, इन्हें नाल कैद को नहीं लाई, तो नाल जवाब ये वे कि ये मुअद्दी की तरफ से तअय्युन पाई गई है दलालत के तौर पे, मुअद्दी की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर ये है कि जिस बंदे दे उत्ते फ़र्ज़ खलोता है ये बंदा मुसलमान है, बड़ा सियाना है, इन्हें नफल का कसद नहीं किया होना, और जिसले वजाहत की थी फिर तो नफल हो गया, सिर्फ मुतलक नीयत है। हुण ये वे कि भी इनकी तबीयत ते इनकी हालत दसदी है भी फ़र्ज़ नूं छड्ड के नफल की नीयत इन्हें नहीं ना की, लिहाजा फ़र्ज़ हो गया इसका। जी हाँ जी, क्या आख्या जी? सवाल है कि अगर किसी शख्स ने मुतलक नियत की कि नवैतुल हज्जा, तो अब जवाब है कि उसका हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जवाब है कि सवाल ये कि ये किस तरह हो गया, नफल की नीयत करेगा तो नफली होगा, मुतलक करेगा तो फ़र्ज़ कैसे बनेगा, क्योंकि नफल भी तो हो सकता है। उसका जवाब दिया है कि मुअद्दी की तरफ से बेदलालत तअय्युन, तअय्युन की दलालत पाई गई, मुअद्दी की तरफ से दलालत पाई गई किसकी? तअय्युन की। अगरचे मुँह नाल नहीं बोलिया, लेकिन मुअद्दी की तरफ से दलालतन तअय्युन है। वो की है? क्योंकि जज़मी बात ये है कि मुअद्दी ने नहीं कसद किया, हालांकि उस पर हज्जतुल इस्लाम हो। सुने हुण उधर देखो, व कौलुहु व जवाज़ुहु अयल इन दल, यानी इतलाक़ नीयत बाई तौर के उन्हें आख्या कि नवैतुल हज्जा बग़ैर तारुज़ के किसके, बेदलालत तअय्युन मिनल मुअद्दी, ये दफ़ा है दखल मुक़द्दर का, तकरीर दखल की ये है कि जब नहीं ज़ाहिर होगा तअय्युन किस में, हत्ता के बाकी रहेगा
नफल मशरू تو پس بچھا کے نہیں بھی نفل کے حق میں یہ جو ہے نا یہ گناہ ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، لہذا نفل مشروع ہے، تو پس ضروری ہے تعین سے کس میں بائیں طور کے نیت کرے کس کی، حالانکہ باوجود اس کے حنفیو تم کہتے ہو کہ نویت الحجہ بھی کرے گا تو حج فرض۔ ایندا جواب کی تقریر یہ ہے کہ نیت کہ بے شک نیت کا تعین حاصل ہو گیا ہے مؤدی کے حال کی دلالت کے سبب سے، مؤدی کے دلالت کے سبب سے کیا ہو گیا ہے نیت کا تعین، کیڑا تعین بھئی فرضی حج، کیڑا حج اور کیوں تعین، کیونکہ ظاہر مسلم کے حال سے وہ مسلم کے واجب ہے اس پر، تو ظاہر کیا مسلم کے حال سے کہ اس نے نہیں قصد کیا ہوگا کس کا، اور حالانکہ اس پر یعنی یہ بات کہ نہیں قصد کیا اس نے نفل کا باوجود کہ فرض باقی ہو اس کے، لہذا ہو گیا فرض متعین بے اے مطلب اگرچہ زبان نال نہیں بولیا لیکن ان دی طبیعت دس دیئے کہ فرض کرن لگا ہے جی، اور سمجھے ہی، لہذا اور نہیں محتاجی اس وقت کدھر بخام خواہ فرض دی قید لاوے تے تائیں حج ہوے گا، نبیت الحجہ چاکھے نا تے کی ہو گیا، ہو گیا جی۔ ان مثال دیں دے جے، اور ہو گیا جیسا کہ خریدی اس نے کوئی شے بے دراہم مطلقہ کی، کہ کنے دی چینی 20 درہماں دی، ٹھیک ہے جی، تو انہیں پوچھا نہیں کیڑے درہم، تو انہیں دسیا بھی نہیں کیڑے، تو ہون حکم کیا جائے گا نقد البلد پر بے دلالت تعین من المشتری، کہ مشتری جو ہیں وہ جو سودا لیتے ہیں تو ان پیسوں سے لیتے ہیں جو اس شہر میں زیادہ چلتے ہیں، تو اب یہ دلالت کی وجہ سے وہ نقد البلد متعین ہو گئے، اسی طرح ایتھے بھی ہو گیا جی، سنیا جی۔ اور مسئلہ دس دے پہ جے قانون مطلق کبھی مقید ہو جاتا ہے دلالت الحال کے ساتھ، مطلق بابا جی آن موشی آندے نے رحمت اللہ علیہ بھی ایک گل رہ گی تانوں دس دینے ہیں، وہ جان اس بات کو کہ بے شک وہ کہ بنایا اس کو مصنف نے 9 سالس من الموقت احجو، بنایا اس کو صاحب توضیح وغیرہ نے چوتھی 9 اے موقت دی چوتھی قسم بنائیے، اور بنایا انہوں نے 9 سالس، وہ اے چوتھی ہے تو بچ پھر تیسری کیڑی رہ گئی ہے، وہ کہ ہو وقت معیار صرف اس کے لیے نہ کہ وقت صرف معیار ہوئے تے اے بھی معمور بے موقت ہے کہ وقت ہوندے واسطے، جیسے کفارات، کفارے دے روزے، نظر مطلق دے تے قضا دے روزے، اینا واسطے جڑا وقت ہے وہ معیار ہے وے، سبب نہیں بے ہونے ہی رکھنے نے، اور مصنف رحمہ اللہ نے نہیں بنایا ان کو موقت سے تاکہ حاصل ہو جاتی ایک اور 9، بلکہ بنایا ان کو مطلق عن الوقت، تے پھر 3 قسمہ بنیاں، ویسے کنیاں بنیاں سن، 4 بنیاں سن، منع کرو جی کتھوں، اور جواز اور کس کا، شاباش اتنے لکھے نے مرضی اور بولے چ کرو، اور جواز حج کا اطلاق کے وقت مؤدی سے تعین کی دلالت کے سبب سے، کیونکہ جزمی بات یہ ہے کہ مکلف نے نہیں قصد کیا، وہ مؤدی اجدا کرنے والا نہیں قصد کیا نفل کا، حالانکہ اس پر حجۃ الاسلام ہو، ہاں جی، اور جواز حج کا اطلاق کے وقت مؤدی سے کتنا ٹائم ہو گیا اندر گھنٹہ، سبب ہے،
کیونکہ جزمی بات ہے یہ کہ نہیں قصد کیا مکلف نے نفل کا حالانکہ اس پر حجت الاسلام ہو. اے شاباش سے ادا کے وقت مؤدی سے تعین کی دلالت کے سبب سے، کیونکہ جزمی بات یہ ہے کہ نہیں قصد کیا نفل کا حالانکہ اس پر حجت الاسلام ہے. فصل فصل واجب بالامر کے حکم کے بیان میں کیا کیا جی؟ فصل واجب بالامر کے واجب بالامر کے حکم یعنی امر دے نال جیڑی شے واجب ہوندی ہے اونوں اساں کرنا ہے، اوندا حکم کی ہوندا جی؟ واہ واہ، وہ دو قسم ہے، وہ اور تھلوں ویکھو واہ واہ، یعنی واجب بالامر، بھئی وہ جو واجب ہوا ہے امر کے سبب سے ساڈے ذمے آیا ہے، وہ کی ہے؟ دو قسم ہے. فصل واجب بالامر کے حکم میں، اور وہ کون؟ دو قسم ہے. ہاں جی مولوی جی. امر کے حکم میں اور دو قسم ہے. فصل واجب بالامر کے حکم میں اور وہ دو قسم ہے. اداء ما هو تسلیم عین الواجب بسببه الى مستحقه، ایک ہے ادا، ایک ہے قضا، ایک ہے دوواں دی تعریف. ادا کی ہے، ادا سپرد کرنا مکلف کا عین واجب کو واجب کے سبب کے ساتھ واجب کے مستحق کی طرف. کیا کیا جی؟ ادا یہ ہے کہ سپرد کرنا مکلف کا عین واجب کو واجب کے سبب کے ساتھ واجب کے مستحق تک کی طرف، وہ تک بھی اس نو ایک باری پھر ادا کے سپرد کرنا مکلف کا واجب کے عین کو واجب کے سبب کے ساتھ واجب کے مستحق کی طرف. ایک باری تمہیں آکھیو بابا. ادا سپرد کرنا مکلف کا عین واجب کو واجب کے سبب کے ساتھ واجب کے مستحق کی طرف. اور دیکھو دھیان نال بھائی، احدہما دھیان کرے جو پلاؤ جی، اور نواں مسئلہ شروع ہو گیا. احدہما ادا وہو تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحق. موشی آندہ پہلے ذرا بیش ہے متعلق لب لیے پھر مطلب پڑھ دیا. یہ جو البا للسببیت، اے جڑی بے سببیت دی با ہے نا، یہ کندے واسطے وے؟ نہیں البا للسببیت، پہلے تو یہ آنکھوں نے یہ با کس کی ہے؟ اور یہ بے سببی جار مجرور متعلق ہے کس کے؟ یعنی واجب اپنے سبب کے ساتھ. سنیں جی. اور الا مستحق جو ہے یہ متعلق ہے کس کے؟ یعنی سپرد کرنا واجب کے مستحق کو. اور بے سبب ہی ضمیر کا مرجع کون؟ واجب، یعنی واجب اپنے سبب کے ساتھ، اور مستحق ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بھی کدھر ہے؟ یعنی عین واجب کو واجب کے مستحق کی طرف، عین واجب کو. ہوں سنو ضمیراں سمجھ آئیاں. خلاصہ ادائیگی کیا ہے؟ تسلیم کرنا نفس واجب کا جو ثابت ہے کس میں؟ اور کندے ذمے؟ اے تسلیم کرنا جو ذمے میں کس طرح آیا؟ او بے سبب ہی، یعنی بسبب موجب لہو کے، اس سبب کی وجہ سے جو واجب کرنے والا ہے اس کو ذمے میں. سنیں، جیسا کہ وقت نماز کے لیے کیا ہے؟ اور شہر روزے کے لیے. اے بچ ایک مثال دیتی، اینو کی کرنا عین واجب کو سپرد کرنا الا مستحق ہی، یعنی اس ذات کو جو مستحق ہے کس کی؟ اے شاباش.
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਦਾ ਕਾਮਿਲ ਤੇ ਅਦਾ ਕਾਸਿਰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਬਈ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਕਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਾਸਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਆ ਗਈ ਕਿੰਦੀ? ਬਈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। अच्छा जी, ये तारीफ शामिल है मुवक्कत को सुपुर्द करना उसके वक़्त में, जैसे, रोज़ा, और ये तारीफ शामिल है सुपुर्द करना गैर मुवक्कत को ज़कात सदका फितर। इन्हां सारियां दा वक़्त मुतय्यन कोई नहीं, ये जदों भी करांगे की होणगे बस। और तस्लीम से मुराद क्या है कि की लिखे है? मिनल वजूद इन्होंने लिखा सारे च इवें ही, असलियां च नहीं हैगा। अल खराज मिनल अदम इलल वजूद। हुण नमाज फिलहाल कोई नहीं ना मादूम है ते इनू फेलां विच मौजूद करना है, ना कि इस मौजूद नू मादूम करना है जी। ये हुण सारे नुस्खे जिवें आ दूजे बाबे लिखे, नाले मैनू खुद तुहानूं भी समझ आ रही सी भी उल्ट हो गया काम जी। तो ये जे कि तस्लीम की हुंदा है कि इखराज मिनल अदम इलल वजूद फिल वक्तिल मुअय्यन लहू। बे नमाज दे वास्ते जेड़ा वक़्त है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੁਣ ਮਾਦੂਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਜੇ ਮਾਦੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਦਮ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਮਝਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ। ਬਈ ਤਸਲੀਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੁਰਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ मतलब जी वो समझ गए हो? ऐ शाबाश है। वगरना अफाल जो होते हैं वो तो अर्ज़ा दा किसी ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਦ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं हो सकता जी। इसलिए यहाँ तस्लीम का माना है कि फेल को अदम से लाने का मतलब करना है यार, जिमें शरीयत आके वो में काम कर देना यार। कमाल जी। चलो जी, अदा और वो और कौन वो सुपुर्द करना ऐन वाजिब को वाजिब के सबब के साथ वाजिब के मुस्तहिक को ओके दे गया मौले अनस सपोर्ट करना है वाजिब को वाजिब के सबब के साथ वाजिब के मुस्तहिक को। शाबाश जी। सपोर्ट करना है वाजिब को वाजिब के सबब के साथ वाजिब के मुस्तहिक को। चलो।